کراچی پر ترکین کرنے والوں کو میئر کراچی کا کرارا جواب۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں جب ملک مشکل ادوار سے گزر رہا تھا انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ کراچی وہ شہر ہے جس میں ملک بھر سے تعلق رکھنے والے لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی میرے دوست منصور علی خان صاحب کی، جس میں انہوں نے زرداری صاحب نے جو پچھلے دنوں عید کی ملاقات میں گفتگو کی، اس حوالے سے انہوں نے اپنے بہت سارے تاثرات قلم بند کیے۔ گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا، آصف علی زرداری صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان جب مشکل سے مشکل دور سے گزر رہا تھا تو اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے۔ کراچی کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا تو کیا جاتا ہے، کراچی کا موازنہ بھی لاہور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ایپل اورنج کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اور جب میں ایپل اورنج کہہ رہا ہوں تو اس کو بھی منصور صاحب ٹوسٹ کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بے شک لاہور جو ہے کراچی سے بہت آگے ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو سمجھنا پڑے گا کہ کراچی وہ شہر ہے جس کی آج بھی آبادی آپ نے صحیح طریقے سے طے نہیں کی۔ کراچی وہ واحد شہر ہے دنیا کا جس کے اندر جس طریقے کا رش ہے پاپولیشن کا، جو کہ پاکستان کے طول و عرض سے پاکستان کے ہر حصے سے آتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی کتنا ایک منفرد شہر ہے۔ وہ بتا رہے تھے، اپنا کسی دوست کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کراچی والا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں لاہور میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کراچی کے علاقے میں آ جائیے، آپ کو کتنے لاہور کے ہمارے دوست نظر آئیں گے جنہوں نے کراچی کو اپنا گھر بنا لیا اور آج کراچی میں ہی رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ تھوڑا سا غیر مناسب ہے۔ زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی وہ پاکستان کے حوالے سے تھی کہ پاکستان کو کیا کیا بڑے بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، ان کی قیادت آنے والی نسلوں کے لیے کیا چیز کر رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 3 سال کے لیے 250 روپے فی لیٹر پر فکس کی جائے۔ انہوں نے پاک ایران گیس منصوبے کی تکمیل، ایران کے ساتھ تجارت کے فروغ اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ عوامی ریلیف کے لیے بڑا فارمولہ دے دیا، وفاقی حکومت کی کارکردگی پر سوالات بھی اٹھائے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر تنقید کی۔ کہا، کراچی کے مسائل آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں، جبکہ وفاقی حکومت شہر کے مسائل کے حل میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ اس وقت شہر کراچی میں جو 3 دن عید الاضحیٰ کے گزرے اس پہ لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کی، لیکن صفائی ستھرائی کا نظام ماضی کے مقابلے میں انتہائی خراب رہا۔ امیر جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمت 250 روپے فی لیٹر مقرر کر کے کم از کم 3 سال کے لیے فکس کرے تاکہ کاروباری سرگرمیوں اور معیشت کو استحکام مل سکے۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول کو 250 روپے کی سطح پہ لایا جائے، اس لیے کہ اب ایکس ریفائنری تقریباً اتنا ہی پڑ رہا ہے، اور اس کو لاک کر دیا جائے 3 سال کے لیے۔ یہ 3 سال کے لیے آپ پیٹرول کی قیمت لاک کریں، آپ بجلی کو جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ صنعتی بجلی کو ہم جو ہے وہ 9 سینٹ پہ لے کر آئیں گے، وہ لے کر آئیں۔ اسی طرح گیس کی قیمت کم کریں۔ حافظ نعیم الرحمان بولے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کیا جانا چاہیے اور ایران کے ساتھ تجارت پر موجود رکاوٹیں ختم کر کے آزادانہ تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ کراچی آج بھی پانی کی شدید قلت کا شکار ہے، جبکہ مضبوط اور بااختیار بلدیاتی نظام کے بغیر شہری مسائل کا حل ممکن نہیں۔ ان کے مطابق مقامی حکومتوں کو وسائل اور اختیارات منتقل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 4 سال میں پاک ایران گیس پائپ لائن پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ اور اس وقت جب پاکستان کی پوزیشن انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہی ہے، تعریفیں آپ سمیٹ رہے ہیں، تو یہ تو رائٹ ٹائم تھا کہ آپ یہ کہتے کہ ہم یہ کام کریں گے اور اسی طرح ایران کے ساتھ آزاد تجارت کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوامی مسائل کے حل، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین احمد کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے تینوں روز عوامی خدمت کو یقینی بنایا گیا۔ تمام بلاکس میں علائشیں اٹھانے کے بعد متعلقہ علاقوں میں سپرے، چونا اور فیومیگیشن کا عمل بھی کیا گیا تاکہ صفائی اور صحت کے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔
दिन जो है मुकम्मल हुए और हमने हमारे ऑपरेशंस भी जारी रहे और ये तो आपको मालूम है कि ये बेसिकली जो ज़िम्मेदारी है वो सूबाई गवर्नमेंट के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है और 2016 से जो हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट था वो भी सूबाई गवर्नमेंट को मुंतकिल हो गया और वो सारा निज़ाम उनके पास मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस जो मौजूदा निज़ाम है उसी निज़ाम के अंदर रहते हुए इस वक्त गुलबर्ग टाउन के 22 ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें ऑफल भी मुकम्मल हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमने सेकंड डे से ही अपना फ्यूमिगेशन का पूरा एक निज़ाम बनाया। आपको मालूम है आलाइशों के नतीजे में खून और जो कुछ गंद होता है उसके में ताफुन फैलता है और फिर उसके नतीजे में जो कुछ मच्छर की अफजाइश होती है तो उसको भी हमने सेकंड डे से एड्रेस किया हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। साथ में चूने का छिड़काव है वो भी मुकम्मल हो रहा है। तो ये पूरा एक निज़ाम है जिसके तहत लोगों ने ईद उल अज़हा के सुन्नत इब्राहिमी भी अदा की है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपनी फैमिली के साथ अपने गुलबर्ग टाउन के 22 ब्लॉक में इस ईद को इंजॉय भी कर रहे हैं। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद का कहना है कि ईद उल अज़हा के तीनों दिन आलाइशों के हवाले से उनकी टीम ने मौसर काम किया, ताहम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से तयशुदा मशीनरी फ्राहम नहीं की गई। महदूद वसाइल के बावजूद टाउन इंतज़ामिया ने अपने इख्तियारात से बढ़कर सफाई ऑपरेशन जारी रखा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। तौर पे जो इस वक्त कराची के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है वो ये कि जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया में बल्दियाती इदारों के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है उसको बल्दियाती इदारों से ले लिया गया है और इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट के नाम पर जो काम हो रहा है उसमें अमली तौर पे जो मुश्किलात हैं वो ये कि आवाम का रुजू पब्लिक के नुमाइंदों की तरफ होता है। वो मुंतखब नुमाइंदों से रब्ता करते हैं अपने मसाइल के हल के लिए और मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त मजबूर हैं सिंध सॉलिड वेस्ट की तरफ देखने के लिए और उसके नतीजे में बहरहाल मशीनरी का बर वक्त ना पहुँचना, जो अमले की तादाद हमसे तय की गई थी उसके मुताबिक ना देना, इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैं ये कहूँगा कि गुलशन इकबाल टाउन में मुंतखब नुमाइंदों, हमारे अपनी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, उसकी मशीनरी और सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट और उनकी जो कंपनी है, इन सब की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में गुलशन इकबाल की हद तक मैं समझता हूँ कि हम इस हवाले से कामयाब रहें कि हमने बड़ी हद तक चीज़ों को मैनेज किया है, अगरचे कि ताख़ीर हुई है और ताख़ीर का सबब जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी या उनकी कमज़ोर पॉलिसी की वजह से। शहर कायद मसाइल की आमाज का बन गया है। कहीं टूटी फूटी सड़कें तो कहीं सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। पीटा चौरंगी पर सीवरेज का पानी सड़क पर जमा होने से राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। गंदा पानी सड़क पर फैलने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 8-9 माह से सीवरेज का निज़ाम तबाहाली का शिकार है। मुतल्लिका इदारे मसला हल करने में नाकाम नजर आते हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद सूरत हाल चूं की तूं है। अभी कम से कम ये 8-9 महीने से यही सीवरेज का पानी है, ये मसला यही पे, यहाँ से पानी आगे चले जाता है, ये आगे गाड़ी भी 1-2 दफ़ा तो गिर गया और यहाँ पे नमाजी जो आने जाने वालों के लिए भी बड़ा तकलीफ है, जो है ना अभी बाइक वाला वगैरह के लिए भी बड़ा मसला है। कम से कम हमारा तो यही मुतालबा है कि ये साफ़ होना चाहिए। ये जो मेन सीवरेज लाइन है, ये आगे का कोई मसला, उस दिन पे KMC वाला जो सीवरेज का काम करते वो आए थे, वो बोलते आगे कोई मसला है, मगर पानी यहाँ तो बहुत ज़्यादा जमा होता है, लोगों के लिए भी तकलीफ है। कभी 1-2 दफ़ा चक्कर लगाया, लेकिन चक्कर लगाया, गाड़ी भी लाए थे बाहर, फिर चला गया, सोचने कहा कि आगे से कोई बड़ा मसला है, फिर वो चले गए। 2-3 दफ़ा तो आए थे लेकिन बहरहाल काम नहीं किया, इसी बगैर काम चलेगा। कारोबारी हवाले से खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तसर कारोबारी हफ्ते के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 6118 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसील जानते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। कारोबार स्टॉक मार्केट में तेजी से सरमायाकार मालामाल। ईद उल अजहा की तातीलात के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान सिर्फ 2 दिन लेन देन हुआ। तहम महदूद कारोबारी सेशंस के बावजूद मार्केट में नुमाया तेजी देखने में आई। हफ्तावार बुनियादों पर 100 इंडेक्स में 6118 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,73,962 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 174,106 जबकि कम तरीन सतह 170,161 पॉइंट्स रही। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में 60 रोज की तोसी से आलमी सतह पर खाम तेल की सप्लाई में बेहतरी की तवक्को पैदा हुई, जिसके नतीजे में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और खरीदारी का रुझान बढ़ा। कारोबारी हफ्ते में मार्केट में मजमूई तौर पर 72 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 6 करोड़
शेयर्स के सौदे हुए, सरमायाकारों की दौलत में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 549 अरब रुपए इजाफे के बाद 19,166 अरब रुपए तक पहुंच गई। गुज़िश्ता जुमे को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरी बार कमी का ऐलान किया, जिसे मईशत और अवाम दोनों के लिए मुस्बत पेशरफ करार दिया जा रहा है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से ट्रांसपोर्ट और पैदावारी लागत कम होगी, जिसके नतीजे में महंगाई की रफ्तार में मजीद कमी आने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक आलमी और मुकामी मुआशी हालात में बेहतरी बरकरार रही तो आने वाले हफ्तों में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने को मिल सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा हो गया। चांदी की कीमत में कमी हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $13 इजाफे के बाद $4,538 फी औंस की सतह पर पहुंच गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में इजाफे के असरात मुकामी सराफा बाजारों में भी देखने में आए हैं, जहां फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपये से बढ़कर 4,76,162 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,115 रुपये इजाफे के बाद 4,08,232 रुपये की सतह पर पहुंच गई है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। फी तोला चांदी 21 रुपये सस्ती होकर 8,013 रुपये की सतह पर आ गई है। मीडियम टैक्स ऑफिस कराची की मई 2026 में शानदार कारकर्दगी। हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली। मई 2026 में MTO कराची ने 25 अरब रुपए हदफ के मुकाबले 27 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मीडियम टैक्स ऑफिस कराची ने मई 2026 के दौरान टैक्स वसूली में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए मुकर्ररा हदफ से ज़ायद महसूलात जमा कर लिए। MTO कराची की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में इदारे ने 27 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूल किया, जबकि मुकर्ररा हदफ 25 अरब रुपए था। इस तरह इदारे ने हदफ से बढ़कर टैक्स वसूली का रिकॉर्ड कायम किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि मई 2025 के मुकाबले में मई 2026 के दौरान टैक्स वसूली में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल 2025 में MTO कराची ने 21 अरब 79 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया था। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई 2026 में इनकम टैक्स की मद में 14 अरब 41 करोड़ रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 17 अरब 13 करोड़ रुपए, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 अरब 35 करोड़ रुपए वसूल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 के दौरान MTO कराची ने 5 अरब 76 करोड़ 90 लाख रुपए के रिफंड्स भी जारी किए। FBR के मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ने मीडियम टैक्स ऑफिस कराची की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए मुकर्ररा हदफ से ज़ायद टैक्स वसूली पर अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी। अशरफ खान, सिटी 21। नए माली साल के बजट की आमद। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद कहते हैं कि गाड़ियां आवाम की ज़रूरत बन चुकी हैं। नए माली साल के बजट में ऑटो सेक्टर के लिए आसानियां होनी चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि हम IMF के सारी बातों को जो है मानते भी हैं और उसी के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है, तो ऑटोमोबाइल के हवाले से रिलैक्सेशन नहीं है बिल्कुल भी। और जिन गाड़ियों पर रिलैक्सेशन थी, जिस पे 8.5% टैक्सेस की बात हो रही थी, उसको भी IMF ने 18% पे ले जाने के लिए कहा है। गवर्नमेंट का इरादा था कि हम EV के ऊपर 1% कर दें, लेकिन IMF जो है वो 18% की डिमांड कर रहा है। तो मुझे इस वक्त ऑटोमोबाइल के लिए कोई अच्छी चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमने हुकूमत से अपील की हुई है कि जैसे आपने पिछले साल बजट में ऐलान किया था कि हम आस्ता आस्ता ड्यूटीज एंड टैक्सेस को कम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हुकूमत को जो अपना वादा किया हुआ है उसको निभाए और लोगों के लिए आसानी पैदा करे। गाड़ियाँ इस वक्त लोगों की ज़रूरत है और हमें उस ज़रूरत के लिए हमें टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, वरना अगर गाड़ियाँ आवाम तक हम नहीं दे पा रहे, इसका मकसद ये है कि हम टैक्सेस कम नहीं कर रहे। इस टाइम जो सबसे गंभीर सूरत हाल है हमारे मुल्क में, चाहे वो नए प्लेयर्स हों चाहे वो 3 पुराने प्लेयर्स हों, कोई भी लोकलाइजेशन नहीं करा, सब असेंबलर्स हैं। हम जब तक लोकलाइजेशन नहीं करेंगे हमारे मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है CKD SKD असेंबली इंपोर्ट जो कर रहे हैं
तो हमारा करोड़ों डॉलर उसमें जा रहा है।